बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। बिफोर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, लेट अस डिफाइन अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ व्हाट वी कॉल रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है इन विच वेरिएबल अकर्स अंडर रेडिकल साइन। For example, x plus 1 square root is equal to 5. This is an example of radical equation. Or we can also take an example of radical equation as 2x plus 3 cube root is equal to 7. So such type of equation are called radical equation. So radical equation is an equation in which variable occurs under the radical. When we solve such equation, we will have to remove this radical sign, either square root or cube root. जब हम इस रूट साइन को रिमूव करते हैं either by taking square or by taking cube on both side, तो हमें एक ऐसी इक्वेशन हासिल होती है जो विदाउट रूट होती है। Such equation will be non-equivalent to the given equation. तो हम इस given equation का solution find करने के लिए वो जो non-equivalent equation हासिल होगी by taking square or cube of these equation, तो हमारे पास x की कुछ वैल्यूज आएंगी जो कि इस ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, और कुछ ऐसी भी वैल्यूज आ सकती हैं जो इस ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगी। तो वो एडिशनल सॉल्यूशंस जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, दोज आर कॉल्ड एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। So extraneous solutions are those solutions which do not satisfy the original given equation. In first part of question number 2, we have to solve the given radical equation 3x plus 4 square root is equal to 2, and we will have to check for extraneous solution as well. इसके लिए हमें given equation में से square root remove करना होगा। For that purpose we will have to take square on both sides. Taking square on both sides, we will get 3x plus 4 square root whole square equal to 2 square. ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन आएगी हमारे पास 3x plus 4 is equal to 4। ये एक इक्वेशन आई है जो कि हमने गिवन इक्वेशन से हासिल की है, और इट इज़ नॉन इक्विवेलेंट इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम 4 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। 3x is equal to 4 minus 4, 3x equal to 0, which implies that x equal to 0 divided by 3, क्योंकि ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, which implies that x is equal to 0. Now we will check whether this value of x is included in the solution or not. उसके लिए हम चेक परफॉर्म करेंगे। Given equation is 3x plus 4 square root is equal to 2. Put x equal to 0. Therefore, we will add 3 multiplied by 0 plus 4 square root equal to 2. 3 multiplied by 0 is 0 plus 4 square root equal to 2. Now 4 plus 0 is 4 square root equal to 2. We know that square root of 4 is 2. 2 is equal to 2. So this solution, that is value of x, satisfies the given radical equation. Therefore solution set will be
0. This value of x will be the solution of the given equation. क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में हमने इस गिवन इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसके लिए हमने ये देखना होगा कि टर्म विद रेडिकल साइन शुड बी ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन। अगर उसके अंदर कोई दूसरी टर्म या कोई दूसरा नंबर ऐड हो रहा हो तो हमने उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करना होगा। यानी हमने ये देखना होगा कि टर्म अंडर द रेडिकल साइन शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द अदर टर्म्स। यानी एक साइड पे सिर्फ एक टर्म विद रेडिकल साइन होनी चाहिए। तो इसके लिए हम 2 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। एज रिजल्ट वी विल हैव 2x - 4 क्यूब रूट इक्वल टू 0 + 2। ये हासिल हो गया हमें 2x - 4 क्यूब रूट इज इक्वल टू 2। अब इस क्यूब रूट को रिमूव करने के लिए हमें क्यूब लेना पड़ेगा दोनों साइड पे। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, as a result we will have 2x - 4 cube root whole cube equal to 2 power 3। ये क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन आएगी हमारे पास 2x - 4 इज इक्वल टू 8 बिकॉज 2 power 3 इज इक्वल टू 8। अब हम इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 4 विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द राइट हैंड साइड। एज अ रिजल्ट वी विल हैव 8 + 4, 2x equal to 12, which implies that x equal to 12 divided by 2, which is equal to 6. Therefore, x equal to 6. Now check for the solution. We will write the given equation is 2x - 4 cube root -2 equal to 0. Put x equal to 6. 2 multiplied by 6 minus 4 cube root -2 equal to 0. Now 6 multiplied by 2 will be 12 minus 4 cube root -2 equal to 0. 12 minus 4 is 8. 8 cube root -2 equal to 0. Cube root of 8 is 2. So it will be 2 minus 2 equal to 0. 2 minus 2 will be 0. So we will get 0 equal to 0, which is true. So solution set will be equal to 6. आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हमने गिवन रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करना है जिसमें स्क्वायर रूट गिवन है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हम इसको इस तरह सॉल्व करते हैं कि एक साइड पे टर्म विद रेडिकल साइन वो सेपरेट होनी चाहिए। उसके साथ जो भी नंबर हो हम दूसरी साइड पे ट्रांसफर करते हैं। तो दिस 2 विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द राइट हैंड साइड। एज अ रिजल्ट वी विल गेट t + 4 square root equal to 5/2. Now taking square on both sides. As a result, we will get t + 4 square root whole square equal to 5/2 whole square. ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा और इक्वेशन आएगी हमारे पास 2 + 4 equal to 25/4, क्योंकि 5/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4। अब हम t फाइंड करने के लिए 4 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे और ये माइनस हो जाएगा 25/4 - 4। अब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 4 विल बी एलसीएम, यहाँ पे 25 आएगा और यहाँ पे जो कि 1 है लिहाजा हम लिखेंगे 1 multiplied by 4, 4 multiplied by 4. It will become 16. 25 minus 16 will be equal to 9/4. Therefore, t is equal to 9/4. अब हम चेक करेंगे कि whether this
value of t satisfies the original equation or not. Two multiplied by t plus 4 square root equal to 5. Put t is equal to 9/4. इक्वेशन आएगी हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 9/4 प्लस 4 इक्वल टू 5. Now 2 multiplied by 9/4 प्लस ये एलसीएम 4 आएगा, इसको हम लिखेंगे 1 multiplied by 4, 4 multiplied by 4 equal to 5. This will become 2 multiplied by 9 plus 16/4 equal to 5, and 2 multiplied by 25/4 square root equal to 5, which implies that 2 multiplied by 25/4 square root will be equal to 5/2 equal to 5. ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, therefore we will get 5 equal to 5, which is true. Hence solution set will be equal to 9/4. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट सॉल्व करते हैं. इसमें हमें गिवन इक्वेशन में क्यूब रूट गिवन है दो एक्सप्रेशन का, और दोनों सेपरेटली गिवन है, एक लेफ्ट हैंड साइड पे एक राइट हैंड साइड पे. तो एक साइड पे एक ही एक्सप्रेशन है विद रेडिकल साइन, देयरफॉर वी विल रिमूव रेडिकल साइन दैट इज क्यूब रूट बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड. इसके लिए ये होगा 2 माइनस टी क्यूब रूट होल पावर 3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस 8 क्यूब रूट होल पावर 3. ये क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड पे, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 2 माइनस टी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस 8. अब अगर हम इस टी को राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो 2 मल्टीप्लाई बाई टी प्लस टी इक्वल टू 2 प्लस 8, विच इम्प्लाइज दैट 10 इक्वल टू 3t एंड t विल बी इक्वल टू 10/3, क्योंकि ये 3 दूसरी साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा. सो द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम बाय सॉल्विंग द गिवन इक्वेशन विल बी 10/3. नाउ वी विल check whether this value of t satisfies the given equation or not. Check. Given equation is 2 minus t cube root equal to 2 multiplied by t minus 8 cube root. Put t is equal to 10/3. तो इक्वेशन आएगी हमारे पास 2 minus 10/3 cube root equal to 2 multiplied by 10/3 minus 8 cube root. यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम विल बी 3, तो हम लिखेंगे 1 multiply by 3 और 2 multiply by 3 minus 10/3 cube root equal to 20/3 minus 8. यहाँ भी एलसीएम 3 आ जाएगा, तो उसके लिए आप 1 लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 8 मल्टीप्लाई बाई 3. ये आंसर आएगा 3, 2 टाइम 3 विल बी 6 माइनस 10 क्यूब रूट इक्वल टू 20 माइनस 24/3 क्यूब रूट. ये आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव 4/3 क्यूब रूट इक्वल टू, अगेन वी विल हैव negative 4/3 cube root, so which is true. Hence the given value of t satisfies the given equation, therefore solution set will be 10/3.
क्वेश्चन नंबर 2 7th पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक साइड पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन होना चाहिए विद रेडिकल साइन। तो सेकंड एक्सप्रेशन को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। तो इक्वेशन बन जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई टी प्लस 6 स्क्वायर रूट इक्वल टू 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई टी माइनस 5 स्क्वायर रूट। यह आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई टी प्लस 6 स्क्वायर रूट इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई टी माइनस 5 स्क्वायर रूट, क्योंकि ज़ीरो जब ऐड होगा तो एज ए रिजल्ट वही टर्म आ जाएगी। अब स्क्वायर रूट ख़त्म करना है तो हम इसके लिए स्क्वायर लेंगे दोनों साइड का, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। टू मल्टीप्लाई बाई टी प्लस 6 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई टी माइनस 5 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई टी प्लस 6 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई टी माइनस 5। अब टी वाली टर्म्स एक साइड पे करेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई बाई टी लेफ्ट साइड पे जाके माइनस होगा और यहाँ पे -5 और ये 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये -11। तो एक ऐसा रिजल्ट आ गया है जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि ठीक नहीं है, ट्रू नहीं है। दैट इज 0 इज इक्वल टू -11 विच इज नॉट एक्चुअली ट्रू, क्योंकि 0 -11 की इक्वल नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल। Therefore, solution set will be empty set. इस इक्वेशन में t की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जिसके लिए हमें एक ट्रू सॉल्यूशन हासिल हो। तो इस गिवन इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक ऐसे रिजल्ट पर पहुंच गए हैं जो कि एक्चुअली ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब है दिस इक्वेशन इज नॉट ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ t। Therefore, solution set will be empty set. क्वेश्चन नंबर 2 8th पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हमें रेडिकल इक्वेशन गिवन है, इसको सॉल्व करना है और कंडीशन है x इज नॉट इक्वल टू -5/2। इसका मतलब ये है कि अगर हम x की वैल्यू -5/2 पुट करते हैं तो हमारे पास डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा और एक ऐसी टर्म हासिल होगी जो कि डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि वो अनडिफाइंड बन जाएगी, क्योंकि हम जब भी किसी नंबर को 0 पे डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड टर्म आती है। Therefore, this equation will be true for any value of x other than -5/2। इसको उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ताकि ये स्क्वायर रूट साइन खत्म हो जाए। x plus 1 over 2x plus 5 square root whole square equal to 2 square। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। As a result we will have x plus 1 over 2x plus 5 equal to 4। अब हम इस डिनोमिनेटर को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वेशन हासिल होगी x plus 1 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2x plus 5। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, हमें हासिल होगा x plus 1 इज इक्वल टू 8x plus 20। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x वाली टर्म एक साइड पे करेंगे और दूसरी टर्म विदाउट x विल बी ऑन द अदर साइड। ये आ जाएगा 8x माइनस x इक्वल टू 1 माइनस 20, क्योंकि ये x 8x वाली साइड पे आ जाएगा और 20 1 वाली साइड पे जाएगा, तो 20 का साइन भी चेंज होगा और x का साइन भी चेंज होगा। ये आएगा 7x इक्वल टू -19 which implies that x is equal to -19/7।
अब हम चेक करेंगे कि वेदर दिस वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई दिस इक्वेशन और नॉट। चेक लिखेंगे हम x प्लस 1 over 2x plus 5 square root equal to 2. Put x is equal to negative 19 over 7. So negative 19 over 7 plus 1 और ये डिवाइड बाई आ जाएगा। इस ओवर या डिवाइड बाई के साइन को हम इस डिवीजन के साइन से चेंज कर देंगे और ये आएगा नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव 19 ओवर 7 प्लस 5 होल स्क्वायर रूट इक्वल टू 2। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 7 विल बी द एलसीएम। ये आएगा नेगेटिव 19 ओवर 7 प्लस 1 ओवर 1 है, ये मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय, यहाँ हम लिखेंगे नेगेटिव 38 ओवर 7 प्लस 5 के नीचे 1 है तो इसका भी एलसीएम 7 आएगा। हम दोनों को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और इक्वल टू 2 आएगा राइट साइड पे। ये नेगेटिव 19 प्लस 7 दिस विल बी नेगेटिव 12 ओवर 7 डिवाइड बाय, यहाँ पे आएगा 38, ये नेगेटिव 38 आएगा और प्लस 35 डिवाइड बाई 7 होल स्क्वायर रूट इक्वल टू 2। नेगेटिव 12 ओवर 7 डिवाइड बाय नेगेटिव 3 ओवर 7 होल स्क्वायर रूट इक्वल टू 2। यहाँ हम डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, नेगेटिव 12 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर नेगेटिव 3 होल स्क्वायर रूट इक्वल टू 2। ये 7 से 7 कैंसिल, नेगेटिव 3 इसको 4 आ जाएगा, इस तरह 4 स्क्वायर रूट इक्वल टू 2 विच इम्प्लाइज दैट 2 इज इक्वल टू 2। सो एक ट्रू रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। तो इट मीन्स दैट दिस वैल्यू ऑफ x satisfies the given equation, so solution set will be equal to negative 19 over 7। तो इस 8th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 के साथ exercise 7.1 has come to an end. We'll have more next time. By that time, Allah Hafiz.